الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعہم بإحسان خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائیوں، سب سے پہلے ہم آپ عقیدت و محبت کے دریا میں غوطزن ہو کر اپنی لو کو، اپنی توجہ کو آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، شہنشاہ اخیار، شافع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نظام پور شریف کے لیے جب میری تاریخ لی گئی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں کوئی تصور تھا نہیں کہ تقریر کرنی کیا ہے۔ پھر جب آج میں احمد آباد آیا اور پھر وہاں سے 60 کلومیٹر کا لگ بھگ سفر طے کرتا ہوا آپ کے اس مقدس گاؤں میں پہنچا تو قرب و جوار میں دیکھ کر، گرد و نواح میں دیکھ کر تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ چھوٹا سا دیہات ہے، میری بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، باؤنس کر جائیں گی یا انٹر کریں گی، تھوڑا سا مجھے تشویش تھی، پریشانی تھی۔ اور جب بہرحال پہنچا یہاں پر تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال، 20 سال، 22 سال کے، ماشاءاللہ چہرے پہ سنت رسول بھی ہے اور سروں پر ٹوپیاں بھی ہے ماشاءاللہ، اور مقدس ہستیوں سے وابستہ بھی ہے، سادات کرام سے اور مرکز اہل سنت کے بزرگوں سے، جوان بچے۔ بہت خوشی محسوس ہوئی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کہیں جاؤ تو ڈائریکٹ جوانوں سے سابقہ پڑتا ہے، بہت بوڑھے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ جو ینگ جنریشنز ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں کرتی ہے، زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ آپ پنکھے کے پیچھے وقت برباد مت کیجیے، بیٹھ جائیے۔ پھر اس کے بعد چونکہ میرے ذہن میں کوئی مواد تھا ہی نہیں کہ مجھے بولنا کیا ہے، اب مقامی لوگوں سے میں نے یہاں کے مسائل پوچھے کہ بھئی یہاں کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ اب جیسی بیماری ویسا علاج کیا جائے گا۔ آپ ہمارے بامبے میں جائیں تو آپ کو مسلمانوں کے سارے فرقے مل جائیں گے، اہل قرآن بھی، اہل تشیع بھی، اور بہت سارے
डीप में आपको मिलेंगे कादियानी, मिर्ज़ई वगैरह बहुत सारे फ़िरक़े मिलेंगे। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसी तकरीर होती है। तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में कोई भी बदमज़हब, बेदीन, अल्लाह व रसूल का गुस्ताख है ही नहीं, और अल्लाह करे क़यामत की सुबह तक पैदा भी ना हो। लेकिन कुछ अपने लोग हैं कि जिनकी तवज्जो थोड़ी इधर उधर हो रही है, तो उस सिलसिले में गुफ्तगू करनी है। तो बहरहाल जब मैं स्टेज पर आया तब भी मुझे मायूसी ये थी कि मजमा होगा नहीं होगा, लेकिन यकीन जानिए कि ऐसे खचाखच भरे हुए मजमे को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बिल्कुल डट कर बैठे हुए हैं। शायर साहब ने इतना अच्छा कलाम पढ़ा, किसी ने 100 रुपया उठकर देने की जहमत नहीं की। शायद बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे थे, बिल्कुल सुनना चाहिए, तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, लेकिन काफ़ी देर से बैठे हैं तो हाथ पैर को भी ज़रा आराम दीजिए, चला फिरा कीजिए, यानी उलमा के पास आके नजराने भी पेश किया कीजिए। मैंने जो गांव के हालात पता किए तो माशाअल्लाह गांव में तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, लेकिन कुछ तरक्की याफ्ता पीर साहब लोगों की आपके गांव में आमद होती है। और गुजरात का मुसलमान वाकई बड़ा भोला है, जहाँ सैयद साहब नाम सुन लिया, जहाँ पीर साहब नाम सुन लिया, वहाँ बेचारा जो है एकदम बिछ जाता है अक़ीदत के साथ। अब ये भी नहीं देखता है कि पीर साहब वाकई में पीर साहब है या पैर साहब है, क्योंकि आजकल मार्केट में हर चीज़ बड़ी डुप्लीकेट आ रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ओरिजिनल हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे हैं, 70 साल के, 80 साल के, उनसे पूछिए कि आपके बचपन में घी कितने टाइप का होता था, वो कहेंगे एक ही टाइप का होता था, देसी घी। और आजकल जो ये निकला है डालडा, ये अभी अभी 10, 20, 25 साल के अंदर निकला। थोड़े और एजेड लोगों से पूछिए कि आपके बचपन में गाय कितने टाइप की होती थी, तो वो कहेंगे कि एक ही टाइप की होती थी, देसी गाय। ये जो 20-20, 25-25 लीटर देने वाली जर्सी गाय है, ये अभी अभी 20-25 साल के अंदर आई है कि नहीं बात सही। फिर आप थोड़ा एजेड लोगों से पूछिए कि आपके बचपन में मुर्गी कितने टाइप की थी, बोलेंगे एक ही टाइप की थी, देसी मुर्गी, जिसको अंडों पे बिठाते थे, 22 दिन के बाद रिजल्ट आता था। लेकिन आज ज़माना ज़्यादा तरक्की कर गया, अभी फार्म की मुर्गियाँ, इधर से कच्चा उधर से बच्चा, फटाफट रिजल्ट। तो ये जो फार्म की मुर्गियाँ हैं, ये अभी 10-20 साल के अंदर आ गया। तो जैसे कमबख्त अंग्रेज़ ने घी में डुप्लीकेट निकाला, गाय में डुप्लीकेट निकाला, मुर्गी में डुप्लीकेट निकाला, वैसे ही पीरों में भी डुप्लीकेट पीर निकाला, आलिमों में भी डुप्लीकेट आलिम निकाला है। अब हर एक को परखने के लिए अल्लाह की मुक़द्दस किताब और हुजूर की हदीस पाक और बुजुर्गाने दीन का तरीक़ा। हमारे लोग अक़ीदत इतनी ज़्यादा कर जाते हैं कि हक़ और बातिल का फ़र्क नहीं करते। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु, मेरा रब फरमाता है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इस हाल में नहीं छोड़ेगा कि गंदे और पाक मिले हुए रहें, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह ताला जब तक गंदों को अच्छों से अलग ना कर दे, तो अल्लाह ताला इस हाल में मुसलमानों को नहीं छोड़ेगा कि गंदे अच्छे मिले हुए रहें, बल्कि अल्लाह गंदों को अच्छों से अलग कर देगा। उसके बाद मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, रूए ज़मीन पे सबसे बड़ी किताब कुरान करीम है। ये ऐसी किताब है जिसके शुरू में रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक की कोई जगह नहीं है। कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब रूए ज़मीन पर बुखारी शरीफ है। कौन सी किताब है? हाँ, थोड़ी सी आप भी अपनी एनर्जी खर्चा करें, मेरे साथ बोलें, ताकि मुझे लगे कि आप तवज्जो के साथ मेरी बात सुन रहे हैं। और आप जब यहाँ से जाएं तो कुछ इल्म लेकर जाएं। ये बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतने एहतमाम से मुझे बम्बई से बुलाया, दूरो दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, इसका कुछ तो रिज़ल्ट निकलना चाहिए। कुरान करीम के बाद रूए ज़मीन पर अगर सबसे बड़ी कोई किताब है तो बुखारी शरीफ। इस बुखारी को कुरान के बाद सबसे बड़ा सारे अहले सुन्नत व जमात, बरेलवी मसलक वाले भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं। और आजकल सुन्नियों में मोहब्बत अहले बैत के नाम पर जो एक नया फ़िरक़ा निकल रहा है,
जैसे घी में डुप्लीकेट निकला, गाय में डुप्लीकेट निकला, वैसे ही सुन्नियों में भी मोहब्बत अहले बैत के नाम पर एक डुप्लीकेट फिरका, जो राफजियों की ईरानी चाय पीकर जिसका दिमाग खराब हो गया, जिनको हम तफजीली कहते हैं और जो अपने आप को मौलाई कहता है। ये मौलाई हरगिज नहीं है, ये सारे का सारा गिरोह मवालियों का गिरोह है। तुम कौन से मुंह से अपने आप को मौलाई कहते हो? जब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के सामने उनके बेटे ने पूछा, और ये बात खुद नहजुल बलागा के अंदर दर्ज है, जो शियों के ईरान से और हिंदुस्तान के कुतुब खानों से छपी हुई है, कि जब हजरत अली से उनके बेटे ने पूछा कि आप अफजल हैं या अबू बकर व उमर, हैदर कर्रार दामाद मुस्तफ़ा अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जो मुझे अबू बकर व उमर से अफजल कहे, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा, 80 कोड़े मारूंगा। आज नापाक लोगों का गिरोह उठकर अपनी जबान को लंबी करते हुए हजरत अली को तमाम सहाबा से, हजरत अबू बकर व उमर से, हत्ता के अंबिया से भी अफजल कह रहा है। खुदा की कसम, ये दीन नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है। तुम्हें दीनो सुन्नियत के नाम पर स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, मीठा जहर दिया जा रहा है। सही और गलत की पहचान कीजिए। संडास पे चांदी का वरक लगाने से उसकी असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। आप देख रहे हैं, दाढ़ी है, जुब्बा है, कुब्बा है, अमामा है, हाथ में आसा है, मुरीदीन का हुजूम है, पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। खुदा की कसम, ये लोग पहुंचे हुए तो नहीं हो सकते कि जो 72 किस्म का आइटम ठूस ठूस कर खाते हैं, और रात भर जिनका टायर पंचर होता है, और जब नमाज के लिए कहा जाए तो कहते हैं हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम तो मक्के में नमाज पढ़ते हैं। मुझे बताओ, ये वली है या सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह वली है? हजरत सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह एक पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मर्तबा उन्होंने रात में रोज आना जितना खाते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, थोड़ा सा ज्यादा खाया, तो अपने दिल को मुखातिब करके कहते हैं, जब गधे को ज्यादा खिलाया जाए तो उससे ज्यादा मेहनत ली जाती है। सुफियान, आज तूने ज्यादा खाया है तो तू आज आधी रात नमाज नहीं पढ़ेगा, फज्र तक नमाज पढ़ेगा। अपने आप को मशक्कत में डालने वाले ये अल्लाह वाले हैं, ये हकीकी वली है, जो खाकर मुरीदनियों के साथ मस्ती से कव्वाली करते हैं। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, और कहते हैं पीर से क्या पर्दा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि बीच में आके बैठ के दिमाग में ठूस ठूस के भर के समझाऊं? आज पीर साहब फरमाते हैं, पीर से क्या पर्दा। मुझे बताओ, इस 7 तबक आसमान और 7 तबक जमीन में सबसे बड़ा पीर कौन है? रब्बे काबा की कसम, हर मुसलमान कहेगा कि अल्लाह के बाद उसके महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। कैसे हो सकता है? जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा बारगाहे रिसालत में आए तो मेरे आका ने यूं ही पूछ लिया, जिब्रील ये बताओ, आदम से लेके मुझ तक हर नबी के पास तुम गए वही लेकर, तो जरा ये बताओ कोई हमसा भी देखा? कोई हमसा भी देखा? तो अमीर खुसरू कहते हैं, जिब्रील ने कहा, आफा कहा गर्दीद अम महरे बुता वर्जीद अम बिसियार खूबा दीद अम। या रसूल अल्लाह, वो लेकिन तू चीजें दीगरी, उसी को मेरे आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। क्या फरमाते हैं मेरे आला हजरत? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले,
सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, आपके पैर के बराबर भी किसी को नहीं पाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के तलवे मुबारक का ये आलम है कि अगर किसी सख्त पत्थर पे रख दें तो कमाले मोहब्बत से वो पिघलना शुरू करता है और अपनी छाती में सरकार के पाए अक़दस के निशान को समो लेता है। उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं वो लज्जत पाबोस के पत्थर ने जिगर में नक्शे कदमे सय्यिदे अबरार बनाया। अल्लाह अल्लाह। उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं आसमां गर तेरे तलवे का नज़ारा करता, या रसूल अल्लाह, अगर आसमान आपके तलवे को देख लेता, आसमां गर तेरे तलवे का नज़ारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज आना एक चांद का सदका उतार दिया करता। वो आपके पाए अक़दस है। तो जिनके पाए अक़दस की अजमत का आलम ये हो, उनके वजूदे मुबारक की अजमत का आलम क्या होगा। अब वो ज़ात जो 7 तबक आसमान और 7 तबक ज़मीन पर खुदाए वहदहू ला शरीक के बाद सबसे अजीम तर है, जिसको अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया और उसी के सदक़े में ये आसमान का शामियाना, ज़मीन का बिछौना, चांदो सूरज की किंदीलें और ज़मीन पर बुलंदो बाला पहाड़ और ये मौजे रवा, ये सारी चीज़ों को वजूद बख्शा अल्लाह ने मेरे आका के आमद के सदक़े में। अगला महीना रबीउन नूर शरीफ का जमकर मिलाद मनाओगे ना, जमकर मनाना और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब वो अजीम ज़ात के जिस पर कुरान उतारा गया, जिसे अल्लाह ताला ने खुद शबे मेराज बुलाकर दीदार का शर्फ अता फरमाया, जिसे अंबिया की इमामत का शर्फ हासिल हुआ, बता उस ज़ात से बड़ा पीर कोई हो सकता है। आजकल ये गांव गांव देहात देहात घूमकर देहाती लोग बड़े मोहब्बती और अकीदतमंद होते हैं, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, और पीर लोग बहुत चाप्टर होते हैं। और आजकल जितने झोला छाप पीर और वली देखना हो तो हमारे बंबई में आ, ऐसे ऐसे वली साहब है भाई, नमूने नमूने के। जो कभी ना नहाए वो बहुत बड़ा वली, जो कभी ना नाखून कटाए वो उससे भी पहुंचेला वली, जो कभी ना बाल कटाए माशा अल्लाह, जबकि कंधे से नीचे बाल रखना हराम, सख्त हराम है, वो और भी बहुत बड़ा पहुंचेला है। और जो गाली गलौज करे माँ बहन की वो तो बहुत ही ज्यादा पहुंचेला है। ऐसे पहुंचेले लोग के पास लोग पहुंचते हैं और अपनी मिन्नतें अर्ज करते हैं और उन्हें वली अल्लाह समझते हैं। खुदा की कसम कायनात में मेरे आका से बड़ा वली कोई नहीं, उनसे बड़ा पीर कोई नहीं, उनसे बड़ा हादी महदी मुर्शिद इमाम बरहक कोई नहीं है। सब कुछ वो है। ज़रा देखिए तो सही, मेरे आका तशरीफ़ ला रहे हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा दरवाजे पर बैठी हुई है, एक सहाबी जो दोनों आँखों से अंधे हैं तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे आका अपनी बीवी से फरमाते आयशा अंदर चली जाओ, देखो सामने से सहाबी आ रहे हैं। सैयदा फरमाती है मुझे बताओ नबी की बीवियां उम्मत की कौन है? माएँ हैं ना। नबी के दुनिया से जाने के बाद उनसे निकाह नहीं हो सकता, हराम। लेकिन उन माओं से पर्दा फर्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा अंदर चली जाओ, कहती या रसूल अल्लाह वो सहाबी अंधे हैं, देख नहीं सकते। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं आयशा तुम तो उन्हें देख सकती हो, तुम तो उन्हें देख सकती हो। आइंदा जब भी जलसा रखना खवातीन के लिए पर्दे का एहतमाम करना। खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस तरह बेपर्दगी के साथ अगर दीनी जलसा करोगे तो बजाय सवाब के आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि मर्दो जन का इख्तलात हो रहा है। आजकल पीर साहिबों ने औरतों के साथ धड़ल्ले से कव्वाली करना शुरू किया और मस्ती से पैर दबवाते हैं औरतों से और फरमाते हैं पीर से क्या पर्दा। ऐसे पहुंचेले पीर लोग तो आते ही होंगे आपके गांव में। अरे बोलो भाई, अल्लाह करे ना आए, लेकिन आसपास के गांव में तो आते ही होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपका पूरा इलाका पाक हो।
اب یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ مجاوروں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے پہنچ رہا ہے. لوگوں کو نماز روزے سے فارغ کر کے محبت اہل بیت کا نام لے کر اور طرح طرح کی بدعات ان کے اندر پیدا کر دی گئی. میں نے جو حدیث بخاری کی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو سینے سے نکال لے گا.